پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی بچی کا واقعہ سناؤں گا جو بچپن میں ہی ماں بن گئی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ میری نانی کے گاؤں میں ایک سمیرہ نام کی عورت رہتی تھی۔ سمیرہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بچی کا نام سحر اور چھوٹی کا نام گلشن تھا۔ سمیرہ کے شوہر اسلم کا ٹائیفائڈ بخار ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت سمیرہ کی بیٹی گلشن 2 سال کی تھی۔ سمیرہ ایک ان پڑھ خاتون تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے مائکے چلی گئی اور سمیرہ کے ماں باپ بھی آخر کتنے دنوں تک اپنی بیٹی سمیرہ اور اس کی بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتے، اور انہوں نے سمیرہ سے بات کی کہ بیٹی، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ اللہ جانے ہماری کتنی زندگی ہے، ہمارے بعد میں تم کس کے در پہ جاؤ گی؟ سمیرہ نے دوسری شادی سے انکار کر دیا اور اپنی بچیوں کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ سمیرہ آخر اپنے شوہر کی سنبھالی ہوئی کمائی بھی کتنے دن کھاتی۔ سمیرہ نے ہار مان لی اور دوسری شادی کا ارادہ کر لیا۔ سمیرہ کا دوسرا شوہر اکرم خوش دل لیکن سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اکرم سمیرہ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا، وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ اکرم کی بیگ بنانے کی فیکٹری تھی۔ سمیرہ بھی اکرم کا ساتھ دینے کے لیے گھر پر بیگ سینے لگی۔ سمیرہ اکرم کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا تو سمیرہ نے ایک ننھے شہزادے کو جنم دیا۔ اکرم بہت خوش تھا کہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ اکرم کی توجہ سمیرہ کی بیٹیوں سے کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کا رجحان اپنے بیٹے کی طرف زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر اس کا بیٹا ذرا سا بھی روتا تو وہ سمیرہ کو ڈانٹتا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس لیے سمیرہ کا تقریباً سارا دھیان اپنے بیٹے کی طرف رہتا۔ سحر گلشن جب بھی اپنی امی کو کوئی کام کہتی تو سمیرہ سحر کو کہتی کہ بیٹی، تم اب بڑی ہو رہی ہو، اپنا کام خود کیا کرو، ساتھ میں گلشن کو بھی دیکھ لیا کرو۔ سحر تقریباً زیادہ تر کام خود ہی کرنا شروع کر چکی تھی۔ وہ گلشن کے کپڑے بھی بدل دیتی اور اس کی چوٹیاں بھی بنا دیتی تھی۔ سحر کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی اور سحر جس باجی کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی اس کی شادی ہو چکی تھی۔ سحر اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ سمیرہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں پر کوئی اسکول نہ تھا۔ اس بار سحر کا ابو اکرم چاہتا تھا کہ سحر 8ویں کے پیپر دے اور میں اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلوا دوں۔ جب سحر کی ٹیوشن والی باجی کی شادی ہو گئی تو سمیرہ نے اکرم سے سحر کی بات کی کہ بورڈ کے پیپر قریب ہیں، سحر کی ٹیوشن کا کیا کرنا ہے؟ تو اکرم سمیرہ کو کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میرے بھائی کا بیٹا شہر سے ایم اے انگلش کر کے آیا ہے اور اس نے ایک ٹیوشن سینٹر کھولا ہے، میں اس سے بات کروں گا، لیکن سحر کو اسی کے پاس رہنا پڑے گا۔ سمیرہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے مان گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے۔ اکرم سحر کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چھوڑ آیا۔ اپنے بھتیجے سے کہا کہ یار وقاص، یہ میری بیٹی سحر ہے، اس کی 8ویں کے پیپر ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کرا دینا، اور جب تک پیپر نہیں ہو جاتے یہ یہیں پر رہے گی۔ تو وقاص نے کہا کہ چچا جان، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سحر پاس ہو جائے گی۔ سحر اب وقاص کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ جب سارے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو سحر اداس ہو جاتی۔ وہ روز اپنی امی سے فون پر بات کیا کرتی تھی اور امی کو کہتی کہ امی، میرا یہاں پر دل نہیں لگتا، مجھے گھر واپس لے جائیں۔ اس کی امی کہتی کہ بیٹا، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر تم نے گھر پہ ہی آنا ہے۔ سحر کو وقاص کے گھر میں رہنے کا یہ فائدہ تو تھا کہ وہ جب بھی چاہتی اپنی پڑھائی کے لحاظ سے کچھ بھی وقاص سے کسی بھی وقت پوچھ سکتی تھی۔ ایک دن رات کے 11 بجے کا وقت تھا کہ سحر کو حساب کے ایک سوال کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی تو وہ وقاص کے کمرے میں چلی گئی اور بولی، وقاص بھائی، یہ سوال مجھے سمجھا دے۔ تو وقاص بولا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ سحر وقاص کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وقاص سحر سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ جب سحر وقاص کے پاس آ کر بیٹھی تو وقاص نے سحر کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی اور سحر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن سحر نے اپنی امی کو فون کیا، امی، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔
समीरा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। अगले दिन फिर सहर बच्चों के होते हुए वकास के पास गई तो वकास ने फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। सहर एकदम से पीछे हट गई। उसने अपनी अम्मी को फोन किया और कहा कि अम्मी अब्बू को बोलें कि मुझे ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। सहर जब भी अपनी अम्मी को फोन करती तो अपनी अम्मी से खुलकर बात न कर पाती, क्योंकि वकास उसके पास ही खड़ा होता था। समीरा ने फिर अकरम को कहा कि जाइए सहर को ले आइए, वो उदास हो गई है, इतने दिन हो गए हैं, वो भी तो एक बच्ची है ना। तो अकरम ने कहा कि आज फैक्ट्री से वापसी पढ़ लेता आऊंगा। रात के वक्त सहर का अब्बू अकरम अभी सोच ही रहा था सहर को घर लेकर जाना है। अचानक एक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर आ गया तो अकरम के मुलाजिम घर जा चुके थे। वहां पर बस 2 मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने मुलाजिमों के साथ मिलकर तैयार कराया। समीरा ने अकरम को बहुत ज्यादा फोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनों के चलने की आवाज की वजह से अकरम को पता न चल सका। इधर वकास के घर वाले किसी शादी में गए हुए थे। आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा, सहर आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? पर सहर ने अपनी आंखें नीचे रखीं। जब वकास सहर के करीब आकर बैठा तो सहर उठकर जाने लगी तो वकास ने एकदम से उसको बेड पर पटक दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना दिया। अगले दिन सहर का अब्बू अकरम उसको लेने आ गया और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, जो रोज अपनी अम्मी को फोन करके कहती हो कि मुझे ले जाओ। तो अकरम की इस बात पर वकास भी कहने लगा कि जी हाँ चाचा जान, आप सच कहते हो, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटा वकास, मैं ही पागल था, इनके शौक पूरे करने चला था। भला आज तक कोई सौतेली औलाद भी किसी की अपनी बनी है, या सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूं। ये कहकर अकरम सहर को घर ले आया। सहर जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लगकर बहुत रोई और अपनी अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया कि अम्मी, पहले तो वो मुझे 4 से 5 दिन छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई नहीं था उस दिन उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो बाज नहीं आया। समीरा ने ये बात अपने शौहर अकरम को बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे वकास को फोन किया कि वकास, तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला, चचा जान, आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ नेकी की थी और आपने मुझे उसका ये सिला दिया। अल्लाह जाने आपकी बेटी कहां से मुंह काला करवा के आई है और आप इसका इल्जाम मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने वकास की बातें सुनी तो उसने समीरा से कहा कि करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। फिर अकरम अपनी बेटी सहर को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सहर के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये सब झूठ है। और अकरम ने सहर के ऊपर थप्पड़ दे मारा और बोला कि नहीं पढ़ने जाना है तो ना जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो ना लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। सहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो सुलूक वकास ने किया उसने लफ्ज बा लफ्ज अपनी अम्मी को बता दिया। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 5 महीने गुजर गए। सहर की जिसामत में काफी फर्क आ चुका था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत खराब देखी तो वो उसको लेकर अस्पताल चली गई। वहां जाकर सहर और उसकी माँ को पता लगा कि सहर माँ बनने वाली है। तो सहर की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर बेसाख्ता रोने लगी। समीरा को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर समीरा ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम ये बच्चा जाया करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। समीरा बहुत डर गई। घर आकर अकरम को सब कुछ बताया तो अकरम बोला कि मैं दोबारा अपने भाई और भतीजे से बात नहीं करूंगा। पहले ही जब मैंने फोन किया था उसने मेरी कम बेइज्जती की थी। साथ ही अकरम ने कहा कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो
تو सहर और समीरा रोने लगे और समीरा कहने लगी कि नहीं, ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी होगी, ऐसा ना करो। अकरम कहने लगा, समीरा, अगर तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इसे इस घर से जाना ही होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकूंगा। लोग तो मुझे ही बुरा कहेंगे ना, और कहेंगे कि सौतेला बाप था, दिखा दिया उसने अपना सौतेलापन। हम सब के लिए बेहतर यही है कि सहर इस घर से चली जाए और इसमें सहर की भी भलाई है। फिर अकरम सहर को अपनी खाला के घर ले गया। अकरम की खाला कहने लगी कि भला मैं इस बदनामी के ढेर को अपने घर में क्यों रखूं? ले जाओ इसको यहां से। अरे भाई, लोग मुझसे पूछेंगे कि ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी? मेरी भी कोई इज्जत है, और वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम तो फिर भी इसके बाप हो। जब तुम उसको बाप होकर अपने घर में नहीं रख रहे तो फिर मैं कैसे रख सकती हूँ? ले जाओ इसको यहाँ से। अकरम सहर को घर वापस ले आया और समीरा को बोला कि इसका बच्चा जाया करवा दो। तो समीरा रोने लगी और अकरम को कहने लगी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये बच्चा जाया करवाया गया तो सहर की जान को खतरा है। समीरा ने सोच लिया था कि अकरम कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले दिन समीरा सहर को लेकर वकास के घर चली जाती है। जब समीरा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची समीरा और सहर को देखकर चौंक जाता है और वकास के चेहरे का रंग बदल जाता है। समीरा वकास के चेहरे के तासुरात देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं, बहन बैठो, क्या लोगी आप? तो समीरा बोली, कुछ नहीं, मैं बस इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का हाल चाल पूछती चलूं। उसके बाद समीरा सहर को लेकर वहां से चली आई। समीरा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था। उसने अगले दिन वकास को फोन किया और कहने लगी कि मुझे तुझसे मिलना है। जब वकास अपनी चाची समीरा के घर आता है तो समीरा बड़े प्यार से वकास से बात करती है कि वकास बेटा, ये सहर तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन वकास आगे से गुस्से में बोलता है और कहता है कि चाची, आप किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तो समीरा भी गुस्से से बोली कि ये किसी और का इल्जाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें यह कबूल करना ही होगा। ये गुनाह तुमने किया है। बोलो, तुमने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। समीरा अपने मोबाइल में ये सब बातें रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इस बारे में वकास को कुछ पता न था। पहले तो वकास माना नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है। बोलो, क्या करोगी? मैं तो लड़का हूं, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी वो अलग, और तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी कोई नहीं करेगा। जाओ जाओ, बताओ सबको, बोलो कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, यानी जिना किया है। ये कहकर वकास वापस जाने के लिए मुड़ता है। समीरा को वकास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और समीरा पीछे से वकास की गर्दन में छुरी मार देती है और वकास की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद समीरा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर आ जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी की सारी कहानी सुनाती है। समीरा की बहन को बहुत दुख होता है और वो समीरा की बेटी को अपने घर पर रख लेती है। उसके बाद पुलिस समीरा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वो समीरा से थाने में मिलने आता है। जब वो समीरा से मिलता है, उसे कहता है कि समीरा, तुमने ये क्या किया? तो समीरा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई तो बोला, तो मुझे बता तो दिया होता, मैं खुद उसको देख लेता। समीरा बोली, आपको बताया तो था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी की बहुत तकलीफ थी, इसलिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये सब किया। थाने के इंस्पेक्टर ने समीरा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। फांसी और उम्र कैद की जगह समीरा को 10 साल की कैद हुई। उधर समीरा की बेटी सहर ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सहर की खाला उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और वो समीरा और उसकी बेटी की हकीकत को जानती थी। सहर की खाला जानती थी कि मेरी बहन समीरा बहुत
تکلیفوں سے گزری ہے، اس لیے اس نے سحر کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی اور سحر آج اس گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ کیا سحر کی ماں سمیرہ نے وقاص کو جیسی موت دی، کیا وہ اسی کا حقدار تھا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔